Hello students, welcome back. Hope so you people have already got your results, and congratulations to all who have made it very successful, to all who have scored very nice percentages, and to all who have passed, because you have actually cleared a very important step in your life when you will be marching towards your career. So hearty congratulations to all of you children who have got their results, and whatever you have earned, it's out of your hard work. So don't feel bad if you have got less percentage. If you have passed, it's a great success that you people have achieved. And all the people who have come out with flying colors, I extend a hearty congratulations to all of you. Okay. Now as you people must be thinking, still people are shortlisting like whether you people are going for arts, commerce or science. Whatever it is, whatever you might opt for, but English is there in every stream. Okay. So till last two lectures children, we have studied about one of the topics that we had. The second topic, on to the summit, we reached the top. The topic written by Tenzing Norgay. Acha, and his efforts in achieving that greatest of all the endeavors, that's Mount Everest, along with Edmund Hillary. Achha. Today's topic children, since we had started with the second topic in the beginning, because the first chapter children, it's a bit lengthy and it will be divided into a bit of lectures. So today we are going to begin with our chapter number 1. As you can see the title children, it's named as Being Neighborly. Now among the icebreakers that we have, just giving you an overview of that. Children, this chapter basically talks about making friends. Now when we try to make friends with the strangers that we have, we come across lots of different situations. So as you can see on your screen, I just want you to understand कि like आप इसमें से किसमें fit होते हो. Okay, I'm just reading out the sentences to you और फिर आप देखो कि like आप कौन से category में आओगे. The first one, or the question that is there children, read out the following statements and mark those that apply to you. First one children, I make friends easily, कि मैं आसानी से दोस्त बना सकता हूँ. There are certain people children who have that क्वालिटी की लाइक वो लोग आसानी से सामने वाले से बात करके कि लाइक दे आर सो प्लेजेंट कि वो आसानी से किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अगर आप कर सकते हो तो आप इस पे टिक कर सकते हो. दूसरा, आई विश टू बी फ्रेंड्स विद समवन बट माय फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड. मेनी टाइम्स इट सो हैपेंस कि लाइक व्हेन वी सी पीपल दे आर सो प्लेजेंट कि लाइक हमको लगता है कि हम उनके साथ में दोस्ती करनी चाहिए, और फिर हम लोग एडवांस करते हैं, और जैसे ही हम लोग दोस्ती के लिए प्रपोज करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा एरोगेंट होता है, फिर घमंडी होता है कि लाइक वो आपके फ्रेंडशिप को रिजेक्ट करता है. ये ज्यादातर बच्चे लोग क्रॉस जेंडर में हो सकता है, इन द सेंस कि लाइक अगर एक लड़का लड़की को फ्रेंडशिप करने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर केसेस में आपको दिखेगा कि लाइक योर फ्रेंडशिप माइट बी रिजेक्टेड. ओके, अच्छा. तीसरा, समवन हैज एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स मी एंड आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इट. किसी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन मैंने उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब हम लोग घमंडी हो गए. ओके, एंड देयर आर सम पीपल चिल्ड्रन हु आर वेरी चॉइसी व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फ्रेंड्स, एंड यू नीड टू बी, बिकॉज फ्रेंड्स चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू बी with us almost for a lifetime, so you need to be very properly planning out कि like how you can, and sometimes like you know children, आपने देखा रहेगा सर फ्रेंडशिप करके थोड़ी ना होते, वो तो हो जाती है ना. yes children, that is it, but we need to be careful sometimes. अच्छा, next one children, I have a large group of friends but no best buddy. मेरे बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, मतलब व्हाट्सएप पे देखोगे तो 5000 होने को आ गए करके, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे, लेकिन मेरा बेस्ट बडी कोई नहीं है. तो हम लोग पार्शियल नहीं होना चाहते हैं कि लाइक इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो अब लेकिन नहीं सभी बेस्ट ही है करके. नेक्स्ट, आई हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव नो विश टू इंटरेक्ट विद एनीवन एल्स. मतलब कुछ ही दोस्तों का हमारा ग्रुप है क्लोज फ्रेंड्स, और किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मतलब आपने क्लोज किया हुआ है अपने फ्रेंडशिप के ग्रुप को कि लाइक देयर आर नो न्यू पीपल विल बी एडमिटेड टू दैट ग्रुप.
Okay. And lastly, children, I have cordial relationship with all, but I cannot connect with anyone. मतलब सबके साथ में मैं अच्छा रहता हूं, लेकिन ज्यादा किसी के साथ मेरी बनती नहीं है, मतलब इतना मैं किसी से क्लोज नहीं हूं. अच्छा, चिल्ड्रन, डिड यू नोटिस वन थिंग? यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि there would be different people with different personalities and different perspective, children. So while making friends, all those qualities which are inside you will come out. और आपको पता है, आप ये सबके अंदर ये जितने भी situations मैंने आपको बताए, ये आपने कभी ना कभी फेस किए हुए हैं. क्लियर? ओके. जो भी आपको लगता है कि लाइक हाँ आपके साथ ये सूट करता है, तो आप उसको टिक कर सकते हो. देन वी हैव गॉट वन वेब डायग्राम हियर. ये भी आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो. फ्रेंडशिप टू मी मीन्स हैविंग कॉन्वर्सेशंस. कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? बातें करते रहना, बातें करते रहना. तो आपने देखा रहेगा कुछ लोग होते हैं जो फोन पे चिपक जाते हैं और फिर वो फोन को छोड़ने का नाम नहीं लेते. मतलब यस, कभी कभी उनको देखने वाले लोग टेंशन में आते कि लेकर इतना क्या बात करते रहेंगे. आप रोड पे जब भी ऑब्जर्व करोगे जरा, मतलब आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 7 or 8 people are like they are just sticking to their headphones, we can say. अच्छा, for some people, children, friendship means giving and receiving gifts. कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? गिफ्ट्स लेना और गिफ्ट्स देना. तो कुछ लोगों के लिए तो पता है, जैसे कि जब आप छोटे थे, याद है जब आपके बर्थडे सेलिब्रेट करते थे घर पे वो लोग, ठीक है, जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते गए फिर वो लोग भूल गए कि आपका बर्थडे भी होता है करके, तो आपको ये अभी सेलिब्रेट करना पड़ता है. When used to be very small children, तो बर्थडे का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता था. वो एक्साइटमेंट में सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता था? वो बर्थडे, सब लोग आपको विश करने में. लेकिन जब एवरीवन वाज बिजी विशिंग यू, तो आपका ध्यान तो ज्यादातर वो बर्थडे गिफ्ट्स की तरफ होता है. और ज्यादातर लोग ऐसे अपने पूरी कॉलोनी को इन्वाइट करते थे. मतलब आपका अटैचमेंट था इसीलिए नहीं, आप ये सोचते थे कि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे. लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो आपको क्या, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट नहीं तो 10 रुपए का डेयरी मिल्क लेके आते थे. लेकिन चलो, उस टाइम पे ये सब चीजें भी बहुत कीमती थी हमारे लिए. फॉर अस ऑल दिस मेंट फ्रेंडशिप. अच्छा, अनदर थिंग्स कुड बी, चिल्ड्रन, यू नो, एनीवन हु हेल्प्स मी व्हेन आई एम इन नीड इज माय फ्रेंड. सो हेल्पिंग इन नीड इज अ फ्रेंडशिप टू मी. नेक्स्ट वन, anyone who understands my problems without telling is my friend. So understanding others' problems, it could be friendship. अच्छा, next, anyone who can meet out my expenses. जब भी हम लोग बाहर जाएंगे, जो भी मेरा खर्चा करेगा वो मेरा फ्रेंड रहेगा. अच्छा, along with that, children, जिस किसी के साथ में मेरा बिहेवियर मैच करता है, मतलब हमारे थॉट्स मैच करते हैं, तो वो मेरा फ्रेंड रहेगा. ऐसे अलग अलग थॉट्स डाल के आप बच्चे लोग वेब डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, then there's one more activity is here, children. If you see someone lonely or sad, what will you do, children? आपने देखा है कि लाइक कोई बहुत सैड दिख रहा है, बहुत ज्यादा लोनली है, तो आप क्या करोगे? And the answer could be, children, it's based on different people. Different people could behave in different terms. सबसे पहले someone might say, अगर मुझे पर्सनली पूछा जाएगा कि मैं अगर किसी को बहुत लोनली और सैड देखता हूं तो हाउ वुड आई रिएक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अप्रोच हिम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज और हर प्रॉब्लम. सेकेंडली, आई वुड ट्राई टू कंसोल दैट पर्सन. I try to make him understand, motivate, and help that person to come out of that situation. Next, maybe make him a part of your group. Take him for an outing. Might be जहां पे भी आप अपने ग्रुप्स के साथ में जाते हो, उसको अपना हिस्सा बना के लेना. शायद आपके साथ में रह के थोड़ा घुल मिल के वो अपने प्रॉब्लम्स को भूल सकता है. राइट? अच्छा, या फिर फॉर एग्जाम्पल, मेनी टाइम्स इट सो हैपन, चिल्ड्रन, कि लाइक आप पॉजिटिवली बात करके उनको ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको थोड़ा भूलने में हेल्प कर सकते हो. मेक देम फील हैप्पी, मेक देम फील जॉली. अच्छा, now you must have realized, children, for last 10 minutes I have been talking about friendships. So this lesson, children, that we are going to analyze is based on friendship. Okay, so before we start with the lesson, it's very necessary that we take a look at the writer. Okay, though, children, as I said, like this lesson might go on for lectures, okay, but we need to understand it in detail. The writer, children, her name is Louisa May Alcott. लाइफ स्पैन था उनका 1832 से लेकर 1888. नाउ थ्रू आउट हर लाइफ, चिल्ड्रन, मोस्टली लाइक उन्होंने जो 19th सेंचुरी की
राइटर थी वो, एंड शी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर चिल्ड्रन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक सर व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट? देयर आर सर्टेन राइटर चिल्ड्रन जिनके राइटिंग्स में आपको दिखेगा कि उनका जो मेन थीम होता है उसमें वुमेन इन्वॉल्व होती है. चिल्ड्रन दे राइट अबाउट वुमेन, दे राइट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, एंड द लिबरलिज्म, लाइक औरत लोगों की आजादी. हाँ, तो उसके बारे में बात करते हैं लोग. अच्छा, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं बच्चे लोग. अमंग दैट द वेरी फेमस बुक दैट वी हैव इज टर्म्ड एज लिटिल वुमन, एंड दिस इज वेरी फेमस चिल्ड्रन अमंग द मासेस. मासेस का मतलब होता है बच्चे लोग ऑलमोस्ट लाइक ऑल द पीपल. अच्छा, एंड क्रिटिक्स एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, जो क्रिटिक्स होते हैं जो बुक्स को रिव्यू करते हैं, तो उन्होंने भी इसको प्रेज किया हुआ है ऑलमोस्ट फॉर अ सेंचुरी एंड अ हाफ. मतलब 150 साल से आप देखोगे कि लोग उसको प्रेज करते हैं. अच्छा, अभी आपको लगेगा कि सर व्हाट इज हर स्टाइल ऑफ राइटिंग? तो हर स्टाइल ऑफ राइटिंग चिल्ड्रन इज वेरी सिंपल एंड लाइवली. उनके स्टोरी के अंदर बच्चों व्हाट एवर कैरेक्टर्स दैट विल कम अक्रॉस दे विल ऑलवेज मेक अ मार्क. अभी हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले उसके अंदर बच्चों बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे आपको, लेकिन इनके राइटिंग्स की खासियत क्या है कि लाइक वो हर एक कैरेक्टर को शी गिव्स अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर, कि लाइक आपको याद रहेगा. हाँ, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि कैरेक्टर है मैग, मतलब आपको सडनली एक पिक्चर दिखता है सामने की, लाइक हाँ वो कैसी रहेगी. जब हम लोग बोलते हैं जो, हाँ तो वेरी लाइव, वेरी लाइक यू नो जॉली गर्ल हु ऑलवेज लाइक्स टू बी हैप्पी एंड मेक अदर पीपल हैप्पी. हाँ, सो एंड उनके स्टोरीज बच्चे लोग मतलब विद चिल्ड्रन और विद लाइक एडल्ट्स सबको उतना ही इन्फ्लुएंस करते हैं. अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक उनके स्टोरीज बेसिकली कहां पे बेस्ड है? तो इट्स द सबर्ब्स ऑफ बॉस्टन. चिल्ड्रन देयर स्टोरीज आर बेस्ड इन अमेरिका. हाँ, तो उन्होंने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है अपने स्टोरीज के लिए, तो इट इज बिलीवेबल. मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ सर ऐसे थोड़ी ना होता है, जैसे कि कुछ फैंटेसी स्टोरीज होते हैं, लाइक फेरी टेल्स होते हैं, जो आपको लगेगा कि लाइक हाँ सर रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन ये स्टोरी के अंदर जो भी आपको दिखेगा हाँ ये आपको बिलीवेबल लगेगा. एंड वेरी चार्मिंग कैरेक्टर्स चिल्ड्रन, वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर्स विच आर गोइंग टू कैप्टिवेट द रीडर्स. मतलब आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कैरेक्टर्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक सर व्हाट अबाउट दिस स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो 1868 में बच्चों लोग उन्होंने जो बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था लिटिल वुमन. अच्छा, उसके अंदर से स्टोरी उठाया हुआ है. अभी ये स्टोरी के अंदर देयर आर 4 सिस्टर्स, और ये 4 सिस्टर्स का नाम क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग. मैग, जो, बेथ, एमी. अच्छा, देन देयर इज गोइंग टू बी वन हीरो हु इज गोइंग टू एंटर हियर. उनका फ्रेंड है जिसका नाम है लॉरी. अच्छा, उनके पेरेंट्स है बच्चे लोग जो मॉडेस्ट मीन्स वाले हैं. मॉडेस्ट मीन्स मतलब चिल्ड्रन क्या होता है? वी टॉकिंग अबाउट पुअर मिडिल क्लास पीपल. अच्छा, ईस्ट कोस्ट अमेरिका के सबर्ब्स में, सबर्ब्स इज लाइक यू नो आउटसाइड द मेन सिटी. सो दे हैव कॉट द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशंस ऑफ रीडर्स वेदर दे आर यंग और ओल्ड. मतलब सब लोगों को उनके स्टोरीज उतने ही पसंद आते हैं. And each character, as I told you children, is very real and is going to be very distinctive. आप मिक्सअप नहीं करोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर अलग ही है करके. अच्छा, जब भी आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो you'll come across these 4 sisters, 4 sisters हैं. अच्छा, वो लोग अपनी लाइफ में किस तरह से कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं. अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी ट्रायम्फेंट होते हैं वो लोग, मतलब जीत जाते हैं. अच्छा, हाउ दे आर वेरी हैप्पी समटाइम्स, हाउ दे आर सैड. And I think children, this lesson when we study, this is like a guiding light for all our lives. हमारे लाइफ के लिए भी बच्चों लोग थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है इसके जरिए. And this extract is actually going to give us a very tantalizing glimpse into the book and narrates the beginning of a lifelong relationship or friendship between Joe. किसका फ्रेंडशिप है बच्चों लोग? जो ये 4 लड़कियों में से सबसे छोटी है और she is the brightest and liveliest of all the 4 sisters. और उनका एक नेबर है, उनके नेबर का नाम है लॉरी, जो बहुत ही ज्यादा वेल्दी है और उनका वो नया नेबर है. तो जो और लॉरी के बीच में किस तरीके से फ्रेंडशिप होता है, द स्टोरी एक्चुअली गिव्स अ टेंटलाइजिंग, दैट्स लाइक अ मेस्मराइजिंग ग्लिम्स कि इनके बीच में फ्रेंडशिप कैसे हुआ था. तो जितने भी 4 सिस्टर्स से बच्चों लोग, क्या नाम बोला मैंने? मैग, जो, बेथ एंड एमी. अच्छा, अमंग देम चिल्ड्रन एज ए सेड कि लाइक दे आर आल्सो रिफर टू एज मार्च गर्ल्स. तो उनका सरनेम बोल सकते हैं हम लोग
अच्छा, और फिर नेबर का नाम क्या है? लॉरी। दे बिकम बेस्ट बडीज। और जैसे जैसे बुक आगे प्रोग्रेस करेगा तो इनके बीच में जो फ्रेंडशिप था वो भी बच्चों लोग वैसे ही मतलब ज्यादा प्रोग्रेस करता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा, नाउ चिल्ड्रन, बिफोर आई बिगिन विद दिस टॉपिक, I'm just going to give you a glimpse of what the story is all about, and in the coming lecture children फिर हम लोग word to word refer करेंगे, अच्छा मीनिंग्स देखेंगे, and then we'll understand the story in detail. As I said कि like these two family children that are there, ये मार्च गर्ल्स तो है ही, अच्छा 4 सिस्टर्स एंड देयर मदर। अच्छा, इसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो इस लेसन में तो लिखा नहीं कि लाइक व्हाट हैपेंड टू द फादर। सो आई थिंक लाइक अमेरिका में व्हेनेवर द वॉर्स एंड ऑल दे टेक प्लेस, तो कभी कभी कंपल्सरी लोगों को आर्मी में बुलाया जाता है। तो एक बार ऐसे ही वॉर चालू हुआ था और तभी गवर्नमेंट का शायद कोई वैन आया रहेगा, एंड देन इनके फादर को, मिस्टर मार्च, उनको आर्मी में बुलाया गया था। तो वहां पे बहुत साल उन्होंने सर्व किया था। तो अभी व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द फैमिली? तो 4 सिस्टर्स और उनकी मम्मी, वो लोग उस घर में रहते थे। अच्छा, अभी उस घर के वहां पे, और जैसे कि आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, अमेरिका तो वहां पे आइस फॉल, बर्फ वगैरह गिरते रहते हैं वहां पे। अच्छा, बीच में एक कंपाउंड जहां पे इनका खत्म होता है और उस तरफ था लॉरी का घर। Whose house is it चिल्ड्रन? लॉरी। अच्छा, अभी दोनों के घर में बच्चों लोग हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रास्ट दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब बच्चों लोग एक साइड में आपको दिखेगा कि घर बहुत पुराना है। देयर इज नथिंग दैट विल एक्साइट यू व्हेन यू लुक एट द हाउस, इट्स वेरी ओल्ड, मिडिल क्लास। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स और ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, मतलब गरीब है वो लोग। अच्छा, on the other hand children, if you just have a look at the house that is on the other side of the hedge, hedge का मतलब क्या होता है? चलो वहां पे उन्होंने बहुत सारे पौधे उगाए तो उससे उनका एक कंपाउंड तैयार हो गया है, बॉर्डर जैसे, और उस तरफ जाएंगे तो लॉरी का घर है। लॉरी चिल्ड्रन एक बहुत ही आलीशान ऐसे घर में रहता है। इट इज जस्ट लाइक अ स्टेटली कैसल। अच्छा, एक मैंशन की तरह है। उसका ग्रैंडफादर है जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, उनको हम लोग मिस्टर लॉरेंस करके रिफर करेंगे। घर के अंदर बच्चों बहुत सारे नौकर चाकर दिखाई देंगे आपको, जो जनरली फॉर एग्जांपल कुछ काम के नहीं, जब तक उनको कुछ बोला नहीं जाता है तब तक कुछ नहीं करते वो लोग। अच्छा, नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज लाइक कि ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक साइड में गरीब घर है, एक साइड में बहुत ही ज्यादा वेल्दी घर है। लेकिन और एक कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, यहाँ पे घर गरीब है लेकिन अंदर रहने वाले लोग बच्चों लोग दे आर वेरी lively in the sense कि like there is so much of laughter, they sing, okay, they might like, you know, their mother, then they gather at the dinner table, they have a lot of fun. That means it's a real life that these people are experiencing, and that is the March sisters along with their mother. और दूसरे साइड में जो बच्चे लोग घर है वहां पे इतना ऐशो आराम दिखाई देगा आपको, लेकिन there is no dialogue, people don't speak to each other. एक लड़का है, कौन? लॉरी। वो तो सबसे ज्यादा मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कभी देख नहीं पाओगे कि लाइक व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब लॉरी घर से बाहर निकला रहेगा। कभी एक कौवे के जैसे ऐसे खिड़की में से अपना सिर बाहर निकाल के इधर उधर देखते रहता है, एंड देन ही इज लॉस्ट इनटू बुक्स। उसका एक ही टाइम पास होता है बच्चों लोग, बुक्स। अभी एक दिन क्या होता है कि लाइक इन लड़कियों को पता है कि लाइक देयर इज दिस बॉय हु स्टेज देयर, और उसमें से सबसे छोटी जो है, जो उसको एक बार मतलब वो देखती है उसको, ऊपर खिड़की में आया रहता है, लेकिन उसका ध्यान ही इज लॉस्ट इनटू ड्रीम्स लाइक यू नो। तो ये जानबूझ के एक स्नो बॉल बना के ऊपर फेंकती है ताकि वो उसकी तरफ देखे। और देन फॉर एग्जाम्पल की लाइक व्हेनेवर दे हैव सम काइंड ऑफ डायलॉग विद ईच अदर, और धीरे धीरे उनके बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप हुआ था। अभी जो को क्या लगता है कि लाइक ये जो लॉरी है उसका लाइफ कैसे बच्चों, ही डजंट गेट मिक्स विद एनीवन, वो सोशलाइज नहीं करता है, वो सिर्फ बुक्स के अंदर ही रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता है। ऐसा भी कोई लाइफ होता है? तो जो चाहती है कि लॉरी के लिए कुछ अलग करने का, मतलब उसके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहती है, वो खुद ही अंदर बुला लेती है। कैसे बुला लेते हैं उसके घर के अंदर खुद को, वो हम लोग जैसे लेसन आगे जाएगा वैसे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और एक दिन चांस मिलता है उसको, जब मिस्टर लॉरेंस घर से बाहर जाते हैं, उस दिन चांस देख के कौन, जो लॉरी के घर पे जाती है, और वहां पे उन दोनों के बीच में फिर बच्चों लोग कॉन्वर्सेशन होता है। और कॉन्वर्सेशन जैसे ही होता है
तो वहां पे जाते वक्त उसकी सब सिस्टर्स ने उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था एंड देन दे बिकम फ्रेंड्स। लेकिन वो फ्रेंडशिप का एपिसोड जैसे ही आगे जाता है तो अचानक से आपको दिखेगा कि घर के अंदर किसका एंट्री होता है, विलन का, एंड दैट इज मिस्टर लॉरी। एंड यू नो चिल्ड्रन, ही बार्क्स लाइक डॉग्स, मतलब वो चिल्लाता है जैसे कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहेगा ना वैसे। अच्छा, अभी अचानक से सामने देख के जस्ट इमेजिन जो उसको लग रहा था कि मतलब यहां पे से भाग जाओ करके, मैं शी कुडंट बेयर इट, उसको जोर से चिल्लाने का था वहां पे देख के। लेकिन अल्टीमेटली बच्चे लोग जो इसका रिजल्ट निकलता है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको, एंड यू विल रियली लव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू लुइसा मे एल्कॉट। अच्छा, दिस इज अ स्टोरी चिल्ड्रन दैट्स टेकन फ्रॉम द बुक लिटिल वुमन। अच्छा, आई मेंशन टू यू चिल्ड्रन दैट देयर आर दिस 4 सिस्टर्स जिनका नाम अगर आपको याद आ रहा है तो मैग, बेथ, जो, एमी। और 4 सिस्टर्स के लाइफ का उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप था। अच्छा, एट द सेम टाइम जो सबसे ज्यादा एक्टिव थी कौन, जो उसका नेबर का एक लड़का जिसका नाम था लॉरी, उसके साथ में किस तरीके से फ्रेंडशिप होता है। ओके, द स्टोरी स्पीक्स अबाउट ऑल दिस फैक्ट्स। Now we will begin today children, step by step we'll move towards the topic. 1 or 2 lectures we'll be discussing it out. Okay, the topic is a bit lengthy but we'll be able to complete it. Okay, so just to begin with children, the story starts around early morning when all the sisters are in the house, and then you suddenly hear one sentence being spoken. अचानक से आपको एक सेंटेंस सुनाई देता है और वो सेंटेंस क्या था, What in the world are you going to do now? जो। अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय वन ऑफ द सिस्टर्स जिसका नाम है मैग। अच्छा, और मैग ने ये सवाल किसको पूछा हुआ है बच्चों लोग, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू जो, कि क्या करने जा रही है तू कल। एंड इट वाज अ स्नोई आफ्टरनून चिल्ड्रन, स्नोफॉल हो रहा था, आफ्टरनून का टाइम था। अच्छा, और सवाल आता है कि लाइक द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मैग टू जो। व्हाई वाज द क्वेश्चन आस्क्ड, क्योंकि जो थी हर सिस्टर, शी केम ट्रैम्पिंग थ्रू द हॉल। ओके, वो हॉल में से ट्रैम्पिंग करते हुए आ रही थी। अच्छा, दैट इज लाइक वॉकिंग विथ हाई स्टेप्स। अच्छा, उसने रबर बूट्स पहने हुए थे। देन शी वॉज वेयरिंग वन ओल्ड सैक एंड अ हुड। अच्छा, सैक एज यू नो चिल्ड्रन इट्स अ शॉर्ट जैकेट दैट वी हैव, और ऊपर से जो कवर करने के लिए हुड आता है। अच्छा, एक हाथ में ब्रूम था बच्चों लोग और दूसरे हाथ में था एक शॉवल। अच्छा, तो आप उसका अपीयरेंस यहाँ पे गेस कर सकते हो थोड़ा, कैसे बोला है, शी केम ट्रैम्पिंग, क्या पहने थे उसने, रबर के बूट्स। अच्छा, ओल्ड सैक विच इज एक्चुअली अ जैकेट, और उसके ऊपर क्या था, एक हुड। एक हाथ में क्या था, ब्रूम, और दूसरे हाथ में क्या था, शॉवल। शॉवल बच्चों लोग इट्स लाइक वो आपने देखा रहेगा आइस वगैरह उठा के फेंकने के लिए, जैसे स्पेड होता है इन अ सिमिलर वे, सामने थोड़ा हॉलो स्पेस रहता है, उससे उठा के हम लोग स्नो फेंक सकते। अच्छा, तो सवाल ये आता है कि लाइक व्हाट डिड जो रिप्लाई, जो ने रिप्लाई क्या किया था। शी सेड दैट गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, answered Joe with a mischievous twinkle in her eyes. As I had told you earlier children that Joe is a very jolly and you know like she goes through a lot of ecstasy, excitement and she is very happy girl. तो उसने एकदम mischievously मैग को जवाब दिया था। अच्छा, मैग ने क्या पूछा था उसको, What in the world are you going to do now? क्या करने जा रहे तू अभी करके, तो ये बोलती कि I am going out for exercise. अच्छा, तो व्हाट वाज द रिप्लाई बाय मैग, मैग ने क्या रिप्लाई किया, मैग बोलते कि लाइक सी गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, बोले एक्सरसाइज के लिए बाहर, आंसर जो विद अ मिस्चीवियस स्माइल, वो तो उसका रिप्लाई लाइक आंसर था। अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक मैग ने क्या बोला, आई शुड थिंक 2 long walks this morning would have been enough. It's cold and dull out and I advise you to stay warm and dry by the fire as I do, said Meg with a shiver. अच्छा, उसकी सिस्टर ने जो ऑब्वियसली उससे थोड़ी बड़ी रहेगी सवाल पूछ रहे, तो इससे हम लोग एक बात तो गेस कर सकते हैं दैट मेग इज एल्डर टू जो। अच्छा, मेग ने पूछा क्या करने जा रहे, तो बोलती कि लाइक आई एम गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज। मेग ने बोला कि देखो सुबह हमने जो मॉर्निंग वॉक किया था वो काफी है और बाहर इट्स वेरी चिल, इट्स कोल्ड एंड इट्स डल।
और मुझे लगता है कि लाइक तुमको घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर के अंदर जो चूल्हा जल रहा है वहां पे रहना, अच्छे से तुमको वार्म भी लगेगा, तुम ड्राई भी रहोगे। सेड मैग विथ अ शिवर, शिवर कर रही थी, शिवर मतलब चलो कांपना होता है ठंडी से। अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक क्या जो उसका एडवाइस सुनेगी? नहीं बच्चों लोग, शी सेज नेवर टेक एडवाइस, मुझे किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती। बोले कि आई कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पुसी कैट। Pussy cat is like, children, if you observe cat, it keeps on moving here and there. So, या फिर sometimes you also observe कि like the pussy cats, they always sit dull in one place, they never move around. तो बोलते कि I don't want to be like a pussy cat. और मैं पूरा दिन है ना ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। और सबसे पहली बात, मुझे किसी का एडवाइस लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो आग के बाजू में पड़े रहना, I don't like it. I don't like to doze by the fire. Doze is like sleep. वो बोलते कि लाइक आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम, मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है और मैं कुछ तो एडवेंचर करके आऊंगी करके। ठीक है, मतलब ये लड़की अपनी बहन की बात सुनने वाली नहीं है। तो चलो अभी ये बाहर चल दी है, ठीक है। तो मैग ने क्या किया? शी वेंट टू टोस्ट हर फीट एंड रीड आइवनहो। तो मैग ने जब देखा कि जो उसकी बात नहीं सुन रही है तो वो चली गई अंदर। अच्छा, वहां पे अंदर चूल्हा चल रहा था, फायर प्लेस था, वहां पे वो आराम कर रही थी, अपने पैरों को थोड़ा वार्म कर रही थी। एट द सेम टाइम उसके हाथ में एक बुक था बच्चों लोग, बुक का नाम था आइवनहो। आइवनहो बच्चों लोग वॉल्टर स्कॉट का एक नॉवल आता है। अच्छा, और उसी टाइम पे सवाल आता है कि लाइक जो क्या करने जा रही थी? तो शी स्टार्टेड टू डिग पाथ्स विद ग्रेट एनर्जी, मतलब वो बहुत फोर्स के साथ, आपको पता है बर्फ के अंदर से चलते हुए जा रही थी। स्नो थोड़ा लाइट था। अच्छा, उसके एक हाथ में ब्रूम था, तो वो क्या कर रही थी? शी वेंट ऑन स्वीपिंग द पाथ ऑल ऑन द गार्डन। उसको क्या लग रहा था कि उसकी एक सिस्टर थी बेथ। अच्छा, जब बेथ उठ के घर से बाहर आएगी ना, हाँ, तो आई थिंक उसको एक मस्त सा एटमोस्फेयर बाहर मिलेगा, क्लीन। एंड द इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर। इनवैलिड इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कुछ डॉल्स थी लेकिन उनके लिम्स मतलब बच्चे लोग हाथ पैर टूटे हुए थे, तो उनको भी थोड़ा सा फ्रेश हवा की जरूरत थी, ऐसे बोलते हो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक आउट द स्ट्रक्चर चिल्ड्रन दैट एग्जिस्टेड देयर। उनका जो गार्डन था बच्चे लोग, द गार्डन, मिस मार्च जो ये 4 बेटियों की मम्मी थी, उनको हम लोग क्या रिफर करने वाले? मिसेस मार्च। और ये उनका जो पूरा फैमिली है बच्चे लोग, उसको हम लोग मार्चेस फैमिली करके बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग घर की बात कर रहे थे वो किसका घर था? मिसेस मार्च का। अच्छा, उनके बाजू में बच्चे लोग गार्डन था और गार्डन के उस तरफ मिस्टर लॉरेंस का घर था। किसका? मिस्टर लॉरेंस। अच्छा, नाउ द बोथ द हाउसेस वर इन द सबर्ब ऑफ द सिटी। सबर्ब्स मतलब आपको पता है बच्चों, उपनगर बोलते हैं उसको, जो मेन शहर से थोड़ा बाहर होता है और जो थोड़ा सा कंट्री लाइक था, मतलब गांव जैसे था। अच्छा, लेकिन अगर आप वहां पे एक बात नोटिस करोगे तो मतलब वहां पे कुछ पेड़ उगे थे, लॉन्स था जो छोटा ग्रास होता है, बड़े बड़े गार्डन थे, और देयर वर क्वाइट स्ट्रीट्स। क्वाइट स्ट्रीट्स क्यों बोले बच्चों लोग? शांत रास्ते थे। अभी रास्ते शांत नहीं होते, इसका मतलब वहां पे चलने वाले लोग नहीं थे, और एट द सेम टाइम देयर वर नो पीपल, क्राउड्स नहीं थे और लोग चिल्लाते नहीं थे। अच्छा, अभी दोनों के घर के बीच में जो गैप था वहां पे बच्चों लोग एक लो हेज था। हेज का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? हम लोग कभी कभी कंपाउंड बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे प्लांट्स उगाते हैं, और जब प्लांट्स उगाते हैं तो प्लांट्स उग के वहां पे ऑटोमेटिकली कंपाउंड जैसे तैयार होता है जो सेपरेट करता है 2 घरों को। सो दैट हेज सेपरेटेड द 2 स्टेट्स, दोनों की स्टेट्स को उसने थोड़ा अलग किया था। अच्छा, अभी थोड़ा डिस्कस करते बच्चों लोग हम लोग की क्या था यहाँ पे। एक साइड में था बच्चों लोग एक घर जो बहुत ही ज्यादा पुराना था। इट वॉज वेरी ओल्ड, ब्राउन करके बोला है बच्चों लोग, ब्राउन। इट वॉज नॉट कलरफुल। अच्छा, इट वॉज लुकिंग वेरी बेयर। बेयर का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? इट वॉज लाइक एम्प्टी, लाइक यू नो, विदाउट एनी डेकोरेशन और एनीथिंग। शाबी लग रहा था। शाबी इज लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉट नीट। अच्छा, इट वॉज रॉब्ड ऑफ ऑल द वाइन्स दैट इन समर कवर्ड इट्स वॉल्स। मतलब समर के टाइम पे जैसे वॉल्स पे क्या जाते हैं बच्चों लोग, क्या देख सकते हैं हम लोग? वहां पे हम लोग कुछ वाइन्स देखते हैं, क्रीपर्स। हाँ, तो यहाँ पे वो नहीं दिख रहे थे। इट वॉज रॉब्ड ऑफ दैट। अच्छा, कभी कभी वहां पे बच्चों लोग फ्लावर्स भी दिखते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो फ्लावर्स वहां पे नहीं थे क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था। हाँ, तो एक घर हम लोगों को पता चला बच्चों लोग, क्या क्या बोला देखो।
ओल्ड बोला है, ब्राउन बोला है, इट वॉज बेयर, शाबी, उसके ऊपर वाइन्स नहीं थे, फ्लावर्स नहीं थे। अच्छा, अभी सवाल आता है बच्चों कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ दैट हेज। वो जो कंपाउंड था उसके बाजू में क्या था? ऑन द अदर साइड वाज अ स्टेटली स्टोन मैंशन। स्टेटली वर्ड का मतलब होता है बच्चों लोग रॉयल, एकदम अलीशान जैसे बोलते ना, राजा के राजमहल के जैसे। मैंशन इज अ वेरी बिग हाउस चिल्ड्रन, जैसे विलास होते हैं बच्चों लोग, मैंशंस होते हैं, पैलेसेस होते हैं ना। अच्छा, पेनली बी टोकन इज लाइक चिल्ड्रन इंडिकेट। क्या उस घर को देख के आपको क्या लगता था? चलो, आपको ये लगेगा कि अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट और लग्जरी मिलेगा। क्या मिलेगा? कंफर्ट एंड लग्जरी, मतलब जो ऐशो आराम रहता है ना बच्चों लोग, ऑल दैट एग्जिस्टेड दैट। अंदर बच्चों लोग खिड़की में से अगर आप कभी देखोगे तो एक बड़ा सा काउच दिखाई देगा। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैव वेल केप्ट ग्राउंड्स। अच्छा, टू द कंजर्वेटरी चिल्ड्रन, जहां पे हम लोग कुछ प्लांट्स वगैरह उगा सकते हैं। एंड ग्लिम्पसेस ऑफ लवली थिंग्स that caught between the rich curtains, मतलब कर्टन, उनके घर के पर्दे थे बच्चे लोग, पर्दे कभी थोड़े से साइड में होते थे तो आप अंदर ये सब चीजें कभी नोटिस कर सकते थे। हाँ, लेकिन एक बात थी, इट सीम लोनली, सुनसान था घर, आवाज नहीं था, लाइफलेस था बच्चे लोग। अच्छा, क्योंकि वहां पे कोई बच्चे नहीं थे जो यहाँ वहां पे जंप कर सकते थे। नो चिल्ड्रन फ्रॉलिक्ड ऑन द लॉन, मतलब वहां पे ग्राउंड तो था, घास उगा होता, लेकिन वहां पे जंप मारने वाले बच्चे नहीं थे। अच्छा, अंदर ना ही किसी माँ का बहुत प्यारा सा चेहरा आपको दिखाई देगा। नो मदरली फेस एवर स्माइल एट द विंडोज। अच्छा, कुछ लोग थे जो अंदर बाहर करते रहते। देयर आर फ्यू पीपल हु वेंट एंड आउट एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हिज ग्रैंडसन, मतलब एक बूढ़ा आदमी था अंदर और उसका एक पोता था, उसका ग्रैंडसन था। अच्छा, अभी वो घर को देख के जो थी ना, जो वो थोड़ी सी फैंसी इज लाइक चिल्ड्रन इमेजिन टू जोस लाइवली फैंसी द फाइन हाउस सीम्ड अ काइंड ऑफ एन्चेंटेड प्लेस। जैसे कि आप उस घर की तरफ देखते हो और आपको पता चलता है कि अरे अंदर क्या क्या होता रहेगा, और आप कभी वहां पे नहीं पहुंच सकते हो, वो जो लाइफ था। सो इट वाज समथिंग काइंड ऑफ एन्चेंटेड, जैसे मैजिकल प्लेस होता है ना, जैसे हैरी पॉटर की मूवीज में दिखता है, या फिर सिंड्रेला की मूवीज में ऐसे कुछ दिखता है, उस टाइप का। And were full of splendors and delight which no one enjoyed. अंदर बहुत ऐशो आराम था, अंदर बहुत सारी आलीशान चीजें थी बच्चों लोग, स्प्लेंडर्स, रिचेस, डिलाइट्स, हैप्पीनेस, लेकिन सवाल ये था कि एंजॉय करने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, नाउ शी वांटेड टू behold those hidden glories. Behold मतलब बच्चों लोग ये सबको देखना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि अंदर क्या क्या है। हिडन ग्लोरीज बोला, हिडन क्यों? क्योंकि कर्टन्स बंद रहते हैं और बाहर के लोगों को शायद अंदर एंट्री नहीं रहेगा। ग्लोरीज मतलब आपको पता है ना बच्चों लोग, दे आर ग्रैंड थिंग्स। अच्छा, और वो जानना चाहती थी उस लड़के को बच्चों, जिसका नाम था लॉरेंस बॉय, जिसको हम लोग शॉर्ट में लॉरी करने वाले बोलते। अच्छा, सो ही इज टू लुक एज इफ यू वुड लाइक टू बी नोन इफ यू ओनली न्यू हाउ टू बिगिन। जब भी वो लोग लॉरी को ऑब्जर्व करते थे तो उसको लगता था कि हाँ, वो लड़का हमसे बात करना चाहता है, वो हम लोग को जाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि बात शुरू कैसे करते हैं। अच्छा, और सिंस द पार्टी शी हैड बीन मोर ईगर देन एवर and had planned many ways of making friends with him, but he had not seen lately, or he had not been seen lately. तो पार्टी में कभी एक बार वो लोग मिले रहेंगे, तो तब से उसने डिसाइड किया था कि मैं इस लॉरी से फ्रेंडशिप करूंगी। उसको मिलने का था उसको, लेकिन शायद वो बहुत दिन से दिख नहीं रहा था उसको, और उसने बहुत सारे तरीके प्लान करके रखे थे इस लड़के के साथ मैं कैसे फ्रेंडशिप करूंगी। अच्छा, नाउ जो बिगैन टू थिंक ही हैड गॉन अवे, कभी एक बार उसके मन में ऐसे ख्याल आया कि शायद वो लॉरी चला गया रहेगा कहीं पे, लेकिन क्या वो चला गया था बच्चे लोग देखते हैं। When she one day spied a brown face at an upper window looking wistfully down into their garden, और अचानक से एक दिन उसने अचानक से देखा, स्पाइड मतलब चलो जासूसी करना होता है, एक ब्राउन फेस ऊपर के खिड़की से ऐसे बाहर देख रहा था। विस्टफुली चिल्ड्रन मतलब शायद विस्टफुल इज लाइक लुकिंग सैड, दुखी दिख रहा था, अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। अच्छा, और उनके गार्डन में देख रहा था। अच्छा, और उसी वक्त नीचे बेथ और एमी क्या कर रहे थे? दे वर स्नो बॉलिंग ऑन वन अनदर। व्हाट इज स्नो बॉलिंग चिल्ड्रन? आपने देखा रहेगा, समटाइम्स वी मेक दोस बॉल्स ऑफ आइस एंड वी थ्रो देम ऑन ईच अदर, राइट? ऐसे वो खेल रहे थे। अभी चारों सिस्टर्स का नाम आ गया क्या बच्चों लोग? यस। स्टार्टिंग में किसका नाम आया था? जो। बाद में कौन थी? मैग। अभी किसका नाम आया? बेथ। और कौन? एमी।
अच्छा, दैट बॉय सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन, मुझे लगता है कि वो बच्चा है ना तरस रहा है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और थोड़े से फन के लिए, शी सेड टू हरसेल्फ। अच्छा, एंड हिज ग्रैंडपा whose name was Mr. Lawrence, right, does not know what is good for him and keeps him shut up all alone. उस बूढ़े आदमी को ना पता नहीं कि उसके ग्रैंडसन को क्या क्या चाहिए करके, और हमेशा बेचारे को अंदर ही बंद करके रखता है। अच्छा, और सडनली जो इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो जो लड़का था लॉरी, उसका मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या रहेगा करके, ही नीड्स पार्टी ऑफ जॉली बॉयज टू प्ले विथ और समबडी यंग एंड लाइवली। उस लड़के को बॉयज की जरूरत है जो उसके साथ में रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। और जो यंग होते हैं ना, बूढ़े लोगों के बीच में रह के, वो भी थोड़ा सा बूढ़ा और थकेला हो गया था, बोले कि हाँ थोड़ा यंग और लाइवली लोगों के साथ में रहेगा तो ऑब्वियसली उसका भी बिहेवियर वैसे ही होगा। एंड आई हैव अ ग्रेट माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, कभी कभी मुझे लगता है कि उस बूढ़े आदमी को जाके बता देती हूँ कि इसको थोड़ा बाहर चल, लोगों के बीच में खेलेगा, कूदेगा और अच्छा बन जाएगा करके। शी वांटेड टू टेल दैट ओल्ड मैन, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा डेयरिंग करने वाली थी वो। ठीक है, अच्छा, ये आइडिया जो को बहुत अम्यूज करके गया था, क्योंकि आपको पता है जो स्टार्टिंग से ही उसको ना बच्चे लोग डेयरिंग चीजें करना बहुत अच्छा लगता। ऐसे भी हमने देखा था बच्चे लोग, वो एडवेंचरस थी एंड शी वाज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग, कोई ना कोई स्कैंडल करते रहने का, कोई ना कोई मतलब मैटर करके आने का बाहर जाके। अच्छा, नाउ शी यूज्ड टू स्कैंडलाइज मैग बाय हर क्वियर परफॉर्मेंसेस। क्वियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग? इट्स लाइक स्ट्रेंज, उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। अच्छा, क्या प्लान किया बच्चे लोग जो ने कि शी वांट्स टू गो टू हुज प्लेस, लॉरी, और किसको बताना चाहते हो बूढ़े आदमी को, क्या कि लेट हिम प्ले अमंग द बॉयज, लेट हिम सोशलाइज, लेट हिम हैव फन। और वो आपको पता है बच्चे लोग, द प्लान ऑफ गोइंग ओवर वाज नॉट फॉरगॉटन, वो भूल नहीं रही थी उसका प्लान। अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ बच्चे लोग, वन स्नोई आफ्टरनून केम, एक दिन दोपहर को जब बर्फ गिर रही थी, जो रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन, और वो सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूं। अच्छा, और अचानक से उसने देखा, शी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ एंड देन सैलिड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द हेज। उसने देखा चलो कि मिस्टर लॉरेंस, जो खड़ूस बूढ़ा आदमी था ना, वो वहां से चला गया था, ड्राइव ऑफ। इसने तुरंत क्या किया पता है, सैलिड, सैलिड मतलब सडनली कोई एक डिसीजन करते कि लाइक अभी मैं प्लान आउट टू डिग हर वे ऑन टू द हेज, वो बाउंड्री के वहां तक गई। अच्छा, वहां पे रुकी हो, पॉज फॉर अ लुक टू अ सर्वे, वो सर्वे करे थे। अच्छा, उसने वापस से बच्चे लोग लॉरी के घर की तरफ देखा, कैसे था, क्वाइट कर्टन्स, ओके, डाउन द लोअर विंडोज एंड सर्वेंट्स आउट ऑफ साइट, कोई नौकर चाकर भी नहीं दिख रहे थे बच्चे लोग, एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल बट अ क्लियर ब्लैक हेड लीनिंग ऑन अ थिन हैंड एट द अपर विंडो। देखो बच्चे लोग, ये बूढ़ा आदमी तो चला गया था। अच्छा, सर्वेंट्स दिख नहीं रहे थे। अच्छा, कर्टन्स थे। ऊपर देखा तो एक खिड़की में से सिर्फ किसी का हेड ऐसे बाहर झुका दिख रहा था, जो अपने चिन पे हाथ रखे हुए था। बोले कि हाँ, देयर ही इज, थॉट जो, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, all alone and sick this dismal day. Dismal is like, for example, very lonely, or for example, almost like, it's equal to death. It's nil, children. It's a shame. I'll toss up a snowball and make him look out and then say a kind word to him. उसने अभी तुरंत डिसाइड किया, चलो अभी एक स्नो का बॉल बनाती हूँ और ऊपर फेंकती हूँ, कम से कम मेरी तरफ देखेगा करके, एंड आई विल से काइंड वर्ड, और मुझसे मैं थोड़ा अच्छे से बात। अच्छा चलो, ये लड़की जैसे डिसाइड करते तुरंत है ना, शी पिक्ड अप अ स्नोबॉल और यू है ना ऊपर उसकी तरफ फेंका, एंड द हेड टर्न एट वंस शोइंग अ फेस विच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस लुक इन अ मिनट। अच्छा भाई चलो देखो, जैसे वो बिना एनर्जी का थका हुआ ऐसे वहां पे था, सडनली उसने देखा कि स्नोबॉल ऊपर आ गया, एंड सडनली उसने ऐसे देखा, और जो बच्चों उसका एनर्जी नहीं था ना उसमें, सडनली फिर वो एनर्जेटिक बन गया रहेगा, यस, विद इन अ मिनट। और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी ना, इस बिग आईज, दे ब्राइटन एंड द माउथ बिगैन टू स्माइल। उसने तुरंत ना बच्चों उसके फेस पे स्माइल आ गया था, और उसने नीचे देखना चालू किया तो उसके आईज ब्राइट हो गए थे। अच्छा, जो नॉडेड एंड लाफ्ड and flourished her broom as she called out. वो बहुत खुश हो गई थी, उसको हाई कर रही थी बच्चों। she nodded, वो हंस रही थी। flourish is like, children, you wave your hand. अच्छा, उसके हाथ में ब्रूम था, वो झाड़ू भी दिखा रही थी उसको, और उसने फिर जो को आवाज दिया। वो बोलती कि हाउ डू यू डू, कैसा है तू, आर यू सिक, बीमार वगैरह है क्या। लॉरी ओपन द विंडो एंड croaked out as hoarsely as a raven. मतलब चलो उसने दरवाजा खोला ऐसे
खिड़की का, और फिर उसने बाहर देखा, जैसे कि एक आध कौवा वगैरह देखता है ना बच्चे लोग, उस तरीके से उसने बाहर देखा इसे। अच्छा, क्या सवाल था? हाउ डू यू डू? ये बोलता है बेटर, थैंक यू। अच्छा, उसने और कुछ पूछा था ना, बीमार वगैरह है क्या? बीमारी लगता था ना वो, बोले हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड देन शट अप अ वीक, बोले कि बहुत बुरा कोल्ड हुआ है, उसको सर्दी हुए और इसलिए उन्होंने मेरे को एक हफ्ते से अंदर बंद करके रखा है। जो बोलते हैं आई एम सॉरी, बोले कि व्हाट डू यू अमेज योर सेल्फ विथ, कि टाइम पास क्या करता है तू अंदर खुद के लिए। तो जो इसने जैसे सवाल पूछा तो लॉरी क्या बोलता है पता है? नथिंग, कुछ नहीं, इट्स डल एज टूम्स हियर, बोले कि इधर बहुत सुनसान है, जैसे कि कोई कब्र रहते ना बच्चों, एकदम सुनसान, वैसे सुनसान है। बोले डोंट यू रीड, पढ़ता नहीं है तो? बोले कि नॉट मच, दे वोंट लेट मी, बोले ज्यादा नहीं, वो लोग मुझे ज्यादा पढ़ने नहीं देते। अच्छा, कांट समबडी रीड टू यू, कोई तुम्हारे लिए पढ़ता भी नहीं है? अच्छा, बोलते कि लाइक ग्रैंडपा कभी कभी पढ़ते हैं मेरे लिए, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हेट टू आस्क ब्रुक ऑल द टाइम। तो बोले कि ग्रैंडपा कभी कभी पढ़ता है मेरे लिए, लेकिन फिर मेरे बुक्स उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगते ना। और ब्रुक जो है ना, उसका ट्यूशन टीचर होता है बच्चों लोग, उसको हमेशा वो पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था। बोले अभी ये लड़की का बिहेवियर देखो ना, बोले कि हैव समवन कम एंड सी यू देन, फिर किसी को बुलाने का ना ऐसे मिलने के लिए वगैरह, वो एक्चुअली खुद का रास्ता क्लियर करे बच्चों, उसको जाने का ना, तो वो चाहती कि उसको बुलाए, बोलते कि हाँ, तो फिर किसी को बुलाने का ना। अच्छा, वो लड़का क्या बोलता है? देयर इजंट एनीवन आई वुड लाइक टू सी, कि कोई भी नहीं है जिसको मैं पसंद करता हूँ या फिर देखना चाहता हूँ। बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज वीक, वो बच्चे लोग बहुत मस्ती, बॉयज लोग बहुत मस्ती करते हैं और फिर यू नो मतलब हेडेक वगैरह होने लगता है। अभी ये लड़की क्या बोलते? इजंट देयर सम नाइस गर्ल हुड रीड एंड अम्यूज यू, अच्छा कोई अच्छी लड़की रहेगी जो आके तुमको पढ़ के थोड़ा सा अम्यूज करा सकती है। अच्छा, अभी देखो खुद का रास्ता करा रही है। अच्छा, गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स, तुमको पता है गर्ल्स बहुत शांत होती है और एक आध नर्स के जैसे केयरिंग होती है वो। अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन, टुडेज लेक्चर वी हैव सीन हाउ दिस पीपल हैव कम इनटू अ कॉन्टैक्ट। जो वर्बली बात करे वो विंडो में है और नीचे कौन है? जो ऊपर लॉरी। अच्छा, ये लड़की चाहती कि उसके घर पे जाने का, उसने चांस भी देखा है कि लाइक ग्रैंडपा चला गया है, कोई ह्यूमन बीइंग दिख नहीं रहा, तो इसने तुरंत स्नोबॉल देके उसका अट्रैक्शन भी खींचा, बात की उससे, पढ़ता है क्या, क्या करता है, बीमार है क्या, अच्छा कोई तुमको मिलने के लिए आता नहीं है क्या, अच्छा पढ़ते हो क्या नहीं हो, अच्छा ग्रैंडपा पढ़ता है, ज्यादा नहीं, ब्रुक ऑल द टाइम पढ़ नहीं सकता है, अच्छा किसी को बुलाने का ना मिलने के लिए, बोले कि नहीं मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, और बॉयज आई डोंट लाइक देम, व्हाई? बिकॉज दे गिव मी हेडेक। तो बोले कि किसी अच्छी लड़की को बुलाना, वो तुमको शायद थोड़ा सा एंटरटेन कर सकती है, गर्ल्स बहुत शांत होती है और बहुत केयरिंग भी होती है, ठीक है। अच्छा, ये बोलने के बाद में सवाल आता है कि लाइक सामने से क्या रिप्लाई आएगा। क्या लॉरी उसको अपने घर पे बुलाता है? अच्छा, क्या जो उसके घर पे जाती है? अच्छा, और क्या अपने जो विलन है कौन? ग्रैंडपा, वो इस बात को जान लेते हैं, और अगर जानते हैं तो फिर उसके बाद में क्या हंगामा या फिर क्या बखेड़ा खड़ा हो जाता है बच्चों लोग। ये सब जानने के लिए आपको मिलना पड़ेगा अगले लेक्चर में। सो टिल देन चिल्ड्रन, बाय एवरीवन, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। मुझे पता है कि आप लोग लॉन्ग वीडियोस बैठ के नहीं देखते हो, और इसीलिए हम लोग इसको थोड़े शॉर्ट लेक्चर्स में डिवाइड करें। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।